Good evening, students. I am Dr. Pritpal. Today we are here to discuss the prelim boosters for 4th of April 2023. So let's begin with the session. So here the first news is reusable launch vehicle technology demonstration. See, if you will read the GS mains paper 3, Science and Technology, in that there is a specific component which talks about space technology. So in space technology, we have to understand the multiple launch vehicles. What is PSLV, what is GSLV, what is SSLV, and in that technology, there is one more launch vehicle by the name reusable launch vehicle. See, the word indicates reusable. Reusable means it will go from Earth, it will place the satellite in orbit, and now it will come back to Earth. With this launch vehicle, we can use another satellite to put it in orbit. अभी तक क्या होता है, अभी तक जो हमारा लॉन्च व्हीकल होता है, जब वो ऊपर सैटेलाइट छोड़ता है तो वो आते वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो उससे कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन बढ़ जाती है. Now we are coming up with a new technology. See, the technology is yet to be developed. It is technology demonstration. Technology demonstration means we are testing this technology. तो इसमें अभी रिसेंटली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है. सैटेलाइट ऊपर जाकर वो कैसे नीचे लैंड किया है, और इसको टेस्ट किया गया है एट अ लोकेशन चालाकेरे इन कर्नाटका. दिस कैन बिकम एन इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर योर मैप वर्क. सो तो इसमें डिटेल्स क्या है? डिटेल्स, एक चिनूक हेलीकॉप्टर यूज किया गया है. चिनूक, अगर आप चिनूक को देखोगे जीएस प्रिलिमिनरी एज वेल एज इन मेंस, चिनूक इज अ टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ लोकल विंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वी टुक इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इट हैज अ कॉम्पिटेंस टू लॉन्च सच व्हीकल्स विद रीयूजेबल टेक्नोलॉजी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. सो नेक्स्ट न्यूज, इट टॉक्स अबाउट मिसाइल. सो टू डेवलप आवर डिफेंस स्ट्रेटजी, to improve our defense architecture, Indian government way back it launched integrated guided missile development program. Under this we have developed 4-5 types of missile such as Prithvi, Akash, Trishul, Nag and Agni. So under this program we have developed a new missile by the name AMOG 3. So AMOG 3 it will be a एंटी टैंक मिसाइल. और जैसे आपको पता है एक एंटी टैंक मिसाइल एक और है, दैट इज योर नाग, NAG. दिस इज ऑल्सो एन एंटी टैंक मिसाइल एंड दिस विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट. मीन्स वंस यू विल फायर दिस मिसाइल, नाउ यू हैव टू फॉरगेट. दिस मिसाइल will do its own course and will hit the target. It will destroy the tank and it will help in improving your defense architecture. So this is what is your AMOG 3 missile. See, so इसमें आपको एक प्रिकर्सर चार्ज मिलेगा. ये एनिमी का जो टारगेट आर्मर है उसको पेनिट्रेट करेगा, उसको डैमेज करेगा, और जो भी आपने सोचा है कि उसको डैमेज करके आपको कैसे उसके टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, उसमें ये सक्षम होगा. And this is for both top as well as direct attack modes. Now coming to the next news. Next news is a torpedo. Torpedo we use in naval security. Torpedo use होता है नेवी में. और torpedo क्या होता है? It is a type of, when a submarine or when a ship it is firing a missile. So when you are firing a missile under sea, it is known as torpedo. और the name of this torpedo is Poseidon. और इस टॉर्पिडो को अब बनाया किसने? रशिया ने. सी, सो रशिया. और इस टॉर्पिडो में क्या होगा? इट्स अ रशियन. इट विल बी अ न्यूक्लियर पावर्ड
इसकी जो एनर्जी आएगी वो न्यूक्लियर पावर्ड होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और ये इतना सक्षम होगा, ये इतना केपेबल होगा दैट इट कैन ऑल्सो टेक अ न्यूक्लियर वॉर हेड, यानी कि इसके आगे जो मिसाइल होगा, इसके आगे जो एमिनिशन होगा, दैट विल बी अ न्यूक्लियर बेस्ड, ठीक है। और दिस इज अराउंड 65 फीट लॉन्ग एंड 6.5 फीट वाइड। इसकी कुछ स्पीड होगी दैट विल बी अराउंड 70 to 80 नॉट्स, और दिस विल बी कैरिंग अ thermonuclear warhead. So this is a torpedo which is named as Poseidon, and it is to be developed by what? Russia. Now coming to the next news. So next news is exercise COPE India. So आपको पता होगा जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन दे यूज टू आस्क मल्टीपल एक्सरसाइजेस कि एक्सरसाइज आर्मी की है, एयरफोर्स की है कि नेवी की है। ऐसे ही रिसेंटली दे आर कंडक्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज बाय द नेम कोप इंडिया, और दिस एक्सरसाइज इज विद व्हाट इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। और ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है? दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन कलाईकुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये लास्ट कंडक्ट की गई थी इन 2019। इससे ये पता लगता है कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे आर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक रिलेशन, दे आर हैविंग अ डिफेंस रिलेशन, एंड दिस वी विल फर्दर स्टडी व्हेन वी विल बी डीलिंग विद इंडो यूएस रिलेशंस। एंड इंडिया इज हैविंग मल्टीपल आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइजेस विद यूएसए like Malabar, like COPE India. So this is what we will read in further lectures. Now coming to the next news. So see, news is not important, Mount Kilimanjaro, but इसमें ये देखना पड़ेगा कि Mount Kilimanjaro है क्या. So Mount Kilimanjaro is a mountain, or in other words we could say this is a mountain, this is a isolated mountain which is in Tanzania. The capital of Tanzania is Dodoma, and ये जो माउंटेन है ये एक डॉर्मेंट, इसकी 2-3 पीक्स हैं, और बोला गया है कि द ओरिजिन ऑफ दिस माउंटेन इज वॉल्केनिक इन ओरिजिन, और दिस माउंटेन इज एन आइसोलेटेड माउंटेन. दिस ऑल्सो कम्स अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दिस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. ठीक है, जैसे एशिया की हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक इज माउंट कॉसियुस्को, यूएस की हाईएस्ट पीक इज माउंट देनाली. तो सिमिलरली अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट द हाईएस्ट पीक इज माउंट किलिमंजारो. सो रिसेंटली एक क्या कहते हैं, एक लड़की है अंजलि शर्मा, तो उसने इस माउंटेन की पीक को क्या किया है, कॉन्कर किया है. तो इसीलिए दिस पीक इज इन न्यूज. But commission, they will not ask you the name of a girl, but they can certainly ask you about Mount Kilimanjaro. So this is in Tanzania with capital Dodoma. It's a volcanic mountain. इसका जो peak है, ये जो peak है इसका, this peak is snow capped, और इसमें you will find multiple climates. Here you will have a tropical type of climate. Here you will have temperate type of climate. Here you will have something called alpine type of climate. So this we will also read in geography. Now coming to the next news. So next news is about Iravikulam National Park. So see, Iravikulam National Park, it is based in Karnataka. Also, it is based in Kerala. It is a part of Southern Western Ghat. And you also know that Southern Western Ghat, जो Western Ghat है वो आपकी 6 states में चलते हैं. जैसे it starts from lower Gujarat, Maharashtra, Goa, then Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. So Western Ghat is also your ecological hotspot, or we also say it as a biodiversity hotspot. Western Ghat, these are the tropical wet evergreen forest. So, और ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, दिस इज वेरी मच फेमस फॉर नीला कुरिंजी. नीला कुरिंजी इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, और नीला कुरिंजी की ये खासियत है कि आफ्टर एवरी 12 years इट ब्लूम्स. एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसमें देयर इज वन पीक बाय द नेम अनामुडी पीक. अनामुडी पीक जो है ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, अनामुडी पीक. सो दिस इज इन द सर्दर्न साइड ऑफ दिस पार्क.
तो दिस पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर शोला फॉरेस्ट. शोला फॉरेस्ट इज अ रोलिंग ग्रासलैंड्स. सी देयर इज अ रोलिंग ग्रासलैंड्स और इसको शोला फॉरेस्ट भी बोला जाता है. और इसमें आपको क्या क्या मिलता है? नीलगिरी ताहर. नीलगिरी ताहर इज अ टाइप ऑफ गोट, गौर. देन यू विल हैव स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, टाइगर, leopard and giant squirrel. So these type of wild dog we have already covered by the name dhol. So these all type of fauna, these all type of animals you get in this Eraviculum National Park. इसमें एक fern भी मिलता है. fern. Now what is a fern? Fern is a type of plant. जो fern होता है वो epiphytic family होती है. epiphytic family का मतलब ये होता है कि इसका ये खुद से खाना नहीं बनाता है. दिस इज बेस्ड ऑन सम अदर प्लांट. सो दैट इज व्हाट इज योर फर्न. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. सो नेक्स्ट न्यूज इज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ सी व्हाट इज द सेंचुरी. अब ये जो सेंचुरी है ये आपको सर्दर्न दिल्ली और या वी कुड से कि अरावली रेंज के अराउंड ये सेंचुरी आपको मिल रही है. अब क्वेश्चन है अरावली रेंज. और व्हाट इज एन अरावली रेंज? अरावली रेंज इज अ रेंज. अब ये जो अरावली रेंज है ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और इसकी जो डायरेक्शन है दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ अरावली रेंज. in northern part Aravali range has lost its mountainous character. The mountainous character is still mountainous or a hilly character is still prevalent in a southern part of Aravali range. Aravali range की highest peak is somewhere here which is known as Guru Shikhar. It's the highest peak of Aravali range. इसमें जो forest है वो dry deciduous type of forest है. And see this is a corridor. This is a सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का ये पार्ट बनता है. सरिस्का इज ऑल्सो नोन एज टाइगर रिजर्व. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट है विच इज नोन एज डोमिनेंट एक्सोटिक स्पीशी विच वी समटाइम्स ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज इनवेसिव स्पीशीज. एंड इनवेसिव स्पीशीज दीज आर नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी. दे बिकम डोमिनेंट, दे आर इनवेसिव इन नेचर. और यहाँ पे एक आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन है दैट इज प्रोस्पोसिस जूलीफोरा. तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पीशीज. दिस इज फाउंड इन दिस रीजन एंड दिस इज अ चैलेंज टू अदर फ्लोरल स्पीशीज ऑफ दिस रीजन. और इसमें आपको कौन कौन से फौना मिलेगा? यू विल फाइंड गोल्डन जेकॉल्स, यू विल फाइंड हाइनास, यू विल फाइंड प्रोक्यूपाइंस, यू विल फाइंड सिवेट्स, जंगल कैट्स. सिवेट्स इज अ टाइप ऑफ कैट, लिजर्ड्स. और अगर आप ये देखोगे ये जितने आपके फौना है दिस फौना इज जनरली फाउंड इन रॉकी टेरेन. दिस फौना इज स्पेशली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट ग्रास डेजर्ट इकोसिस्टम और वी कुड से अ ड्राईलैंड इकोसिस्टम. नाउ कमिंग टू द सी अरावली हिल्स, इट इज मेंशन्ड हियर. और अरावली हिल्स में आपकी यू कैन फाउंड दीज 2-3 रिवर्स, बनस, सहीबी एंड लूनी. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज. See, what is this National Financial Reporting Authority? You people might be aware of twin balance sheet syndrome. और आपको पता होगा कोई भी फर्म होती है उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो जो अकाउंटिंग होती है तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि उस अकाउंटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे मेरी फर्म है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला रहा हूँ कि मेरी फर्म का आप क्या करो, अकाउंटिंग करो, मेरी फर्म की आप बैलेंस शीट बनाओ. सो आई एम पेइंग दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट मनी टू अकाउंट और टू मेक द बैलेंस शीट ऑफ माई ओन फर्म. सो देयर इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारी बैलेंस शीट्स गलत बनी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया लेट्स मेक वन अथॉरिटी. तो नाउ दिस अथॉरिटी इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. दिस इज एन एपेक्स बॉडी. ये बनी इन 2018 और इसका मेन एजेंडा क्या है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर अकाउंटेंट्स, सो दैट जो बैलेंस शीट बने वो एथिकल बने, वो एक सही बैलेंस शीट बने, एक सही पिक्चर ऑफ कंपनी को दिखाया जाए, सो दैट इन्वेस्टर के साथ, बैंक्स के साथ या कोई और फाइनेंशियल ऑपरेटर है उसके साथ एक जस्टिस किया जाए. इस अथॉरिटी का मेन काम क्या होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, अकाउंटिंग कैसे की जाएगी,
अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, अकाउंटेंट्स जो होंगे उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेना होगा, दिस ऑल विल बी अंडरटेकन बाय दिस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. Next news is, this is very much in news, Vycom Satyagrah. See, understand this Vycom Satyagrah. Vycom Satyagrah is a type of Satyagrah. 1924 में क्या हुआ, साउथ इंडिया में कास्टिज्म इज वेरी प्रेवलेंट. सो दिस सत्याग्रह इज फॉर टेम्पल एंट्री, और दिस सत्याग्रह वॉज चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ कास्ट. अब हुआ क्या कि केरला में एक जगह है बाय द नेम त्रवणकोर. त्रवणकोर में एक मंदिर था. उस मंदिर में जो लो कास्ट के लोग होते हैं, जिनको इजावास बोला गया, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल. उनको यह लगता था द प्योरिटी ऑफ टेम्पल वो खराब हो सकती है. तो उसके खिलाफ 1924 में एक सत्याग्रह किया गया. और इस सत्याग्रह में जैसे ये सरदार पनीकर, केपी केशव मेनन, इन्होंने बहुत ज्यादा पिटीशंस लिखी टू द देन गवर्नमेंट ऑफ त्रवणकोर. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लिखा गया, त्रवणकोर एक प्रिंसली स्टेट थी, उसके प्रिंस को भी लिखा गया कि देयर शुड बी अ टेम्पल एंट्री. इन लेटर पीरियड महात्मा गांधी ऑल्सो गेव सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. और इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ऑल्सो रोट मल्टीपल लेटर्स. महात्मा गांधी ने यह भी बोला कि यहाँ के एरिया में कुछ अपर कास्ट लोग रहते हैं जिनको श्रवण बोला गया. तो महात्मा गांधी ने यह बोला कि इनकी एंट्री के लिए, लो कास्ट लोगों की एंट्री के लिए, द सपोर्ट ऑफ अपर कास्ट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप अंडर द श्रवण लीडरशिप. तो और उनको बोला गया कि यू सपोर्ट दिस मूवमेंट एंड आप इसमें टेम्पल एंट्री कराओ ऑफ लो कास्ट पीपल. और हुआ क्या सत्याग्रह में, एज यू नो, तो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए द टेम्पल्स ऑफ दिस रीजन वॉज ओपन फॉर लोअर कास्ट पीपल and for or we could say for the all caste of people, and they were allowed the entry into the temple. So this is what is your Vycom Satyagrah. अब इसमें क्या है कि अभी 2024 is coming. अब 2024 में इस Vycom सत्याग्रह को there will be a 100 years. तो हो सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन they could ask a question on this theme either in preliminary or in mains examination. So this is all about your Vycom Satyagrah. So coming to next news. Next is your MCQs. So based on this news, we have curated some MCQs. You can attempt these MCQs. You can even go through the explanation of this MCQ so that you can understand the concept better. So with this, I'm going to end this session. We will meet again tomorrow with the prelims booster of 5th of April 2023. Thank you.